Next, I'll talk about is the nuclei of cerebellum. Although in my previous lectures I have been repeating these terms, so much of it has already been covered. So here you seeing is like the two cerebral hemispheres is been cut and exposed, but the nucleus, actually the purpose of showing you this diagram on a gross is like this nucleus is visible to the naked eyes. This is visible to the naked eyes, and seeing here, in this, the gray matter of the cerebellum is actually in two parts, like in the cerebral hemisphere also. There was a peripherally placed cerebral cortex, and deep below it's the basal nuclei in the cerebellum also. Now here, similarly, in the cerebellar cortex also, cerebellum also, you have the gray matter peripherally, and this is the cerebellar cortex. This is actually in 3 layers, and I believe this much have been taught to you in your histology of cerebellum. Now, embedded in the white matter, there are 4 pair of nuclei placed lateral to medial, and this the formula I told you is easy. If you remember the alphabetical order, the dictionary order is D, E, F, G. Right, so in this pattern you remember, it will be easy, D, E, F, G. The only thing is इसमें थोड़ा सा एक twist है, वो ये है D, E, F, G को हम G, F कर देंगे लास्ट में. ठीक है, D, E, G, F. तो ये पैटर्न याद रहेगा. So lateral to medial it becomes dentate nucleus, emboliform nucleus, globose nucleus, and fastigial nucleus. Right? Is the slide visible? Yes sir. Yes sir. Okay, ठीक है. So ये पैटर्न याद हो गया, इसी वक्त हैंड टू हैंड सब याद करते चलो. तो लेटरल टू मीडियल हम चल रहे हैं. डी, ई, एफ, जी एक नॉर्मल अल्फाबेटिकल पैटर्न होता है, डी, ई, एफ, जी. उसमें लास्ट में हम एफ, जी को जी, एफ कर देंगे. ठीक है, इतनी बात याद हो गई. तो पैटर्न याद हो गया, डी, ई, जी, एफ. ठीक है, अब इसमें डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस, फास्टिजिया. कुछ नहीं तो वाइवा में तो ये पूछ ही लिया जाता है खूब आराम से. ठीक है, तो न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम बताओ ये सब. तो ये पैटर्न याद हो गया तुम्हें. अब इसमें क्या है, इनका मोर्फोलॉजिकल ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो प्रिमिटिव टू यू कैन से कि नियो, द मोस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियाई इज द मोस्ट मीडियल वन. राइट, वहां पे भी तुमने जब पढ़ा था वो सेरिबेलम को, प्रिमिटिव वाज मीडियली प्लेस्ड, एंड दैट वाज द वर्मिस में जो नोड्यूल था, आगे लिंगुला था, पीछे नोड्यूल था और फॉलिकुलस था. तो प्रिमिटिव का याद रखना मीडियल रहता है. तो प्रिमिटिव को हम क्या कहते हैं, आर्की. सो दिस इज आर्की न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम, एंड दैट इज फास्टिजियाई. ये मीडियल मोस्ट हो गया, मोस्ट प्रिमिटिव. उसके बाद जो इवोल्यूशन में होता है वो पेलियो होता है. द पेलियो इंक्लूड्स ग्लोबोज एंड एम्बोलिफॉर्म बोथ. ठीक है, तो actually there is a combined word from both these nuclei, and that is called nuclei interpolaris. ठीक है, दोनों के बीच में है, इसलिए न्यूक्लियस इंटरपोलारिस कहते हैं. एंड ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म, बोथ ऑफ देम आर पेलियो न्यूक्लियस. एंड लेटरल वन इज द मोस्ट एडवांस्ड, द लेटेस्ट इन ओरिजिन इज द डेंटेट न्यूक्लियस. इट्स अ नियो न्यूक्लियस. राइट, तो इतनी सी बातें हैं इसके बारे में. और अब ये चीज बता दो कि seeing the shape of this dentate nucleus, can you recollect there was a similar nucleus in a brainstem, and that was inferior olivary. Yes, inferior olivary and dentate, they have a same shape of crumpled purse with their hilum facing medially and deeply. So here you find is the hilum of this nucleus. Right, there was big gray matter inside, the fibers will enter here and leave from here. So this is the hilum of this dentate nucleus. ठीक है, तो अभी और भी वर्ड है dentate related when I'll be teaching you about the this cerebrum. तो वहां पे भी आएंगे, dentate gyrus भी होते हैं. तो ये चीज समझ में आ गई, nuclei of cerebellum. Okay, the nuclei of cerebellum, yeah, I was telling you that the same pattern is here. You can see is D, E, G, F. Dentate, emboliformis, globose, and fastigial nucleus. And this is lingula. Right, lingula is also part of archicerebellum.
and posterior most is inferior vermis. And can you see that, you know, on the inferior surface there is vallicula. As I told you, if this is a coronal section of cerebellum, I told you that this vermis protrudes above to the horizontal surface of the cerebellum, and the superior surface of cerebellum, I told you, is slightly convex, and the vermis protrudes above, while on the inferior surface the vermis is sunken inside, so the space found below is called vallicula. So and the transversely you see is the horizontal fissure. So that means it's not the previous sections which I was cutting out. This is a coronal section. ओके तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है, ग्लोबोज एंड एम्बोलिफॉर्म में दे हैव बीन टुगेदर, एज आई टोल्ड यू, दे आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियस इंटरपोजिटस, ठीक है, बिकॉज दे आर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस. यू कैन रिमेंबर इंटरपोजिशन मतलब बिटवीन द पोजिशन ऑफ द टू न्यूक्लियस. रिमेंबर ग्लोबोज एंड एम्बोलिफॉर्म टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियस इंटरपोजिटस. ओके. What about nucleus interpositus? The nucleus interpositus located in the paravermis of the cerebellum. So if you remember the zonal classification, this was the vermis or the median zone. Then you have the paravermal zone or the intermediate zone, and then the lateral zone. So these nucleus interpositus are actually a part of intermediate zone, also called as paravermal zone. So interpositus nucleus located in the paravermis of the cerebellum. It receives inputs from the ipsilateral external arcuate fibers. याद रखना ये posterior external arcuate fibers को हम दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, cuneo-cerebellar tract, as well as the dorsal spinocerebellar tract. Both were coming in from the inferior cerebellar peduncles, which originate. ये दोनों कहाँ से, ये कहां से अराइज करता है, एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से अराइज करता है, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, आल्सो कॉल्ड क्यूनियोसेरेबेलर. और दूसरा जो है ये डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर कहां से अराइज करता है, पोस्टीरियर थोरैसिक न्यूक्लियस, आल्सो कॉल्ड क्लार्केस कॉलम. तो ये दोनों जो ट्रैक्स हैं, ये दोनों जो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल में मैंने बताए थे, मेजर ट्रैक्स हैं इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के, और ये सीधे जाकर के कहां रिले करेंगे, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस में. ठीक है. सो द इंटरपोजिटस न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब लोअर लिम्ब से आ रहे थे, ये अपर लिम्ब से आ रहे थे, क्यूनिएट ये वाला जो है एसेसरी क्यूनिएट फाइबर्स वाले. सो इंटरपोजिटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग agonistic antagonistic muscle pairs and therefore a lesion in this area causes tremors. ठीक है. मैंने बताया था dorsal spinocerebellar है, that was taking proprioceptive sensations from the individual muscles of the lower lip, और accessory cuneate nucleus वाला कहां से ले आ रहा था, individual muscles of the upper limb. दोनों ही ये अपने अपने न्यूक्लियस से पहुंचते हैं और वहां से ये अपोजिट सिमिलर साइड ऑफ द सेरेबुलर हेमिस्फीयर में जाते हैं. तो अब ऑब्वियसली इस पे लीजन होगा, चूंकि ये एंटोगोनिस्टिक अगोनिस्टिक को कंट्रोल कर रहे थे. अब इसमें इन कोऑर्डिनेशन होगा तो जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो ट्रिमर्स हो जाएंगे, राइट. ओके. And the interpositus nucleus is smaller than the dentate but larger than the fastigious nucleus. ये डेवलपमेंटल उसमें डायग्राम में तुम देख चुके हो. साइज में भी इसमें ये बीच में है, साइज में भी, इसलिए भी इसको इंटरपोजिटस कह सकते हैं. ओके. द न्यूक्लियन फंक्शनल कॉलम ऑफ सेरेबेलम को हमने दोनों को जोन, फंक्शनल जोन्स और न्यूक्लियाई को एक साथ पढ़ के देखते हैं क्या फंक्शन से रिलेटेड है. सो फंक्शनल जोन्स आर वर्मल जोन. रिमेंबर द मीडियन जोन इज वर्मल जोन विच वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, क्योंकि ये ट्रंकल मसल्स कंट्रोल करते हैं, फॉर मेजर बैलेंस, एंड मेजर न्यूक्लियस फॉर दिस इज फास्टिजियल न्यूक्लियस. सो वर्मल जोन के लिए जो न्यूक्लियस हो गया है वो है बीच वाला मीडियल मोस्ट न्यूक्लियस, एंड दैट वाज फास्टिजियल न्यूक्लियस, एंड ये आर्की सेरेबेलम का पार्ट हो गया वर्मल जोन. पैरावर्मल जोन हम बता ही चुके थे, इंटरमीडिएट जोन था, दैट वाज इन्वॉल्व विद द, रिमेंबर इसमें अपर लिम और लोअर लिम की डिस्टल मसल्स आ रही थी. रिमेंबर द सोमैटोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो पैरावर्मल जोन विल बी रिलेटेड विद द स्किल्ड skilled and volitional movements, voluntary movements, and major nuclei will be interpositus nucleus.
ग्लोबोज एंड एम्बलिफॉर्मिस। लेटरल जोन जो मैंने बताया था, दैट वाज मोल्ड इवॉल्व्ड एंड दैट वाज फॉर द एंटायर ह्यूमन बॉडी, स्पेशल फंक्शनल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्रामिंग प्लानिंग एक्टिविटी सब कुछ। तो लेटरल जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियस कौन सा है? रेगुलेटिंग द एंटायर मोटर एक्टिविटी, मैंने बताया था, एंटायर ह्यूमन बॉडी। एंड द मेजर न्यूक्लियस फॉर देम इज डेंटेट न्यूक्लियस। वो लेटरल वैसे भी लेटरल होता है, इसलिए ये सब चीजें आसान सी हो गई तुमको। लेटरल जोन के लिए न्यूक्लियस हो जाएगा डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है। एंड फ्लॉक्यूलोनोडुलर लोब जो होता है, ये मोस्ट एक्वेटिक लाइफ में था, मोस्ट एंड इट वाज हैविंग वेस्टिबुलर कनेक्शंस, तो मैं बताया था, इसको हम वेस्टिबुलर सेरिबेलम भी कहते हैं। सो इट कोऑर्डिनेट्स आई मूवमेंट एंड बैलेंस। और तुमने ये चीज बताई थी कि जो फिशेस होते हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग एंड एक्सियल मस्कुलेचर, एंड उसमें आई मूवमेंट्स भी बहुत एफिशिएंट होते हैं। सो आई मूवमेंट्स इज अ प्रिमिटिव फीचर, ये कोई एडवांस फीचर नहीं है। ये मूवमेंट ऑन आई इन रिस्पॉन्स टू योर वेस्टिबुलर इम्पल्स, राइट, फॉर बैलेंसिंग पर्पस। विजुअल स्टिमुलस जो है, ये फ्लॉक्यूलोनोडुलर लोब जो है, ये आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन रेफरेंस टू बैलेंसिंग। ओके, सो दैट वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ द cerebellum.